Hi, this is Mahima Chaudhary on Viral Bollywood. Keep watching. सर राइट में, यहाँ पे सर राइट, सर निको बीच में आ जाओ। बहुत अच्छा, ये स्टैंडिंग भी बढ़ गया या रोशन कटप्पा ऑल ऑफ यू लुक हियर, ऑल ऑफ यू प्लीज थोड़ा पीछे आना दादा। सर सेंटर लुक किकू है, निको इधर सामने। मुझे अलग से बोला कि क्या फायदा होगा। थोड़ा राइट। ओके राइट गाइस दिस नाउ या राइट धीरे-धीरे आपके ले ऑन धीरे-धीरे से ले सेंटर हियर दैट्स नॉट सेंटर बट स्टिल थैंक यू। अभी आप थैंक यू सोलो थोड़ा पीछे आ जाओ रे, चल अपने लोग पीछे जाओगे उतना अच्छा है यार। अरे वो डिस्टेंस लेफ्ट से स्टार्ट मैडम इधर एक रुकिए इधर देखिए सेंटर में देखिए ना मैम इधर, मैम इधर, एक्सक्यूज मी मैम राइट, एक्सक्यूज मी, या मैम लुक हियर वेट, या अच्छा ये अपना सेंटर बोलता है एक मिनट अभी रुकिए मैम राइट में बोलना, मैम या वेट थैंक यू। अच्छा स्टैंडिंग यही है। हां मैं भी देखो ना फुल कलर मिक्सिंग वाला। सर राइट में आपके फुल ब्लू पकड़ रहे। फुल टर्न है यहाँ पे धीरे थोड़ा। हाँ आराम से यस सर यस सर यहाँ पे अभी यहाँ पे इधर यहाँ सर यहाँ पे सामने, चलो थैंक यू ऐसी याद आएगी। सर यहाँ पे चल हो गया तो निकल, चल निकल तू फिर चलो हो गया अरे भाई पीछे सर हो गया यार, लुक ये हाथ नीचे कौन मध्य में है? लेफ्ट ये राइट साइड से मध्य ठीक जी। हाँ यहाँ पे सर राइट में, अरे हो गया तो ए हट हो गया अरे सब इधर ही भाई, नो टेंशन। अरे सर एक साइड क्या कर रहा है? जी यहाँ मैम सेंटर में महिमा चौधरी उसके साथ पुलिस है। हाँ शायद क्या टहल रहा है ये, क्या येलो टी शर्ट वाला टहल रहा है समझ नहीं। उससे हाउस लाइट भी बंद किया ना। अरे ले ये सुहास अरे इधर खड़े रहो, वो भी उधर से। वो मोबाइल हो गया, ये मोबाइल सुहास उधर ही चेक मत करना, चेक बाहर आके करना। सुहास यार एक मिनट टीपू सर हमको मिला नहीं वीडियो के लिए साथ में। अरे Hi, good afternoon. Thanks for coming. So, this is a, you can say, situational comedy movie, my second movie. So, I think we should start with the event. I've not much to say about this. Let's see the trailer. Yes, let the show begin.
Thank you so much, sir. Would you like to say a few words? First of all, good afternoon, and yeah, I'd just like to wish all of you the very best. You're all very talented. I've seen Kiku and I've seen you, but y'all must be very, very nervous, but it's a great moment. I wish you the best. And Jaideep, I heard good things about you, so I'm sure this is going to be terrific. I wish you all the best. Iqbalji, I hope you make lots of money. Just share it with me. Yeah? Okay. Thanks for watching. We are releasing the jukebox today, and soon Manvi will be forwarding you the link. And this song is a treat for you. It will be releasing on 11th to welcome you all as a thanks for all of you to come. And we will send you the links. Now I would like to request the star cast to come on stage, please. I would like to request Divyendu Sharma to kindly come here to say a few words. Yes. Before that, let me just call everyone on stage. Then one by one, we can just ask questions. I would request Mr. Kiku Sharda to kindly come here. Please put your hands together for Kiku Sharda. Priya Banerjee and Harshad Chopra. Rahul Roy is also a part of this movie, but unfortunately he's not here. I would request Divyendu now to say a few words. Just tell us about the character. Well, guys, thank you first of all. आप लोग यहाँ पे आए to give your आपका कीमती समय हम लोगों को दिया. And I don't know, it's just it's really से start किया था film, and now the trailer is out today. I'm really stoked. And yeah, man, yeah, it's all good. Thank you guys, thanks for coming. Character and all, yeah, it's a really fun character. बहुत मजा आया. The main thing is that whether you guys like the trailer or not, I hope you guys like the trailer. So yeah, seriously, yeah. Feeling better. Yeah, I'm passing the. Kiku sir, आप मूवी में है तो पता चल ही रहा है कि थिएटर में लाफ्टर गैस छूटने वाला है. But still, can you just tell us about your role? Role में most importantly, I play son of a godman, and godmen are very important. Godmen are very important part of my life. आपको पता ही होगा. So no, the character is interesting, and I had a ball working with these people standing here, because I've been doing television for a while. मतलब I think 12-13 years I've been doing television. This world is new to me. Literally हम TV shoot करते हैं 10-15 दिन में, maximum 20 दिन में वो episode telecast हो जाता है. You know the response, you know what's happening. लेकिन ये जो है फिल्म बनती है, वक्त लगता है, फिर आपको वहाँ देखने, फिर पता चलता है फाइनली हमने किया क्या है, एक पूरा का पूरा वो सीक्वेंस साथ में देखा जाता है. So this world is very new to me, but it's a cool world. You've been around, and yeah, and so yeah, so I thoroughly enjoyed the process of the entire film being made, and I'm happy that I'm working with these guys. Yeah, thank you. Thank you so much. Now I would like to request Priya to say a few words. Can you just tell us about your role, about your character? Definitely. Well, thank you everybody for being here today. And as Divyendu and Kiku said, I hope you guys like the trailer. Well, my character, I'm playing a girl next door with a lot of dreams, lots of aspirations, and she wants to do something with her life. So once you watch the movie, you'll figure out, I think all our characters are very similar in their own way, but they all have their own aspirations and dreams from their lives. So it's a fun film, and it was a fun team. It was great working with Harshad, Divyendu, Kiku. I mean, we got along so well. We didn't even realize how the time went by. We were, we were chilling, enjoying, shooting, and it was literally one big party, and it was a lot. So it was a lot of fun, and now fingers crossed, hopefully you all like the movie as well, and the songs, and let's see. So yeah. Thank you so much, Priya. Now I would like to request Harshad to say a few words, and Harshad, I would just like to ask you, how's your leg? Broken.
Yeah. Matlab it's fine. I can stand now with two people around. And I think सब लोगों ने सब बोल ही दिया. I hope ट्रेलर आप लोगों को पसंद आया हो. वरना बाहर नहीं जा पाओगे. अच्छी फिल्म है, कंप्लीट फिल्म है, फन फिल्म है, यंग फिल्म है, मैसेज है, रोमांस है, गाने बहुत अच्छे हैं. आई थिंक पता नहीं हमारी तरफ से पूरी कोशिश अच्छी रही है, सब कुछ हमें तो अच्छा लग रहा है. अब पता चलेगा होता क्या. एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड अगेन ऑन पब्लिक Come. I'm in the film and then they won't find me. काफी है, ठीक है. Can we have the first question, please? Yeah. No, there's no significance about the world is going to end. There's a story about four guys, the four friends who come to know that the world is going to end in 7 days. The story is about how would they like to spend, or how do they spend their last 7 days. So, Kiku Sharda, you are such a esteemed comedian now. So, what kind of a role? Is it a comic role or is it a different kind of role you are portraying? सर जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, सो इट्स नॉट लाइक डेलिबरेटली क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और स्लैपस्टिक नहीं है, लेकिन अपने आप में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों के साथ होती है, जो इंसिडेंट वो मौका ही ऐसा होता है कि चीज़ें फ़नी हो जाती हैं. सो इट्स क्वाइट फनी, बट जैसे आपने मुझे और शोज़ में करते हुए देखा है जो तो उस तरीके की कॉमेडी नहीं है. कॉमेडी है लेकिन अलग है. जितनी फनी है उतनी मतलब मैसेज उतना डीप भी है, उतना सॉलिड भी है. दिवेंदु जी, आपने काफी छोटी-छोटी फिल्में करके अभी इतने हाई लेवल तक पहुंचे. आपकी जर्नी कैसी रही है? अच्छी रही है. लाइक यू सेइंग कि अगर हाई लेवल तक पहुंच गए हैं तो आई थिंक इट्स नाइस ओनली. सो या आई एम हैप्पी. हाँ, आई एम रियली हैप्पी. जैसे इन्होंने कहा छोटी छोटी फिल्में करके ऊपर पहुंच गए तो रियली या हाई लेवल, तो अच्छा लग रहा है. आई एम रियली हैप्पी. कैरेक्टर का नाम है सनी, हु इज लाइक अ जुगाड़ू इन द फिल्म. कोई भी नई स्कीम होती है, कुछ करना है, ये करते हैं वो करते हैं, ही इज़ द गाय यू नो जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है. He creates problem also and he solves it also with obviously his gang, and so yeah, he's more like a go-to guy. कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो he'll be the first one to come up with a solution or some तरकीब or something. Where was the film shot in how many days? US. We took around 35 to 38 days to shoot this film. And it was shot in Moradabad, Western UP, Goa, Mumbai. Can we have the next? The next question, please. There will be a bit of comparison with the film Rag Panchama, which you was part of. Do you feel that there will be a similarity in the film? No, this is a very different theme, yaar. Like we are saying 2016, the end. So this whole thing serves like a backdrop of the film. So how one fine day these four friends they get to know कि अच्छा भाई दुनिया खत्म होने वाली है, some asteroid gonna come and just finish off the earth. And ये लोग बताने की कोशिश करते हैं और कोई लोग इनकी बात पे यकीन नहीं करता है. So they are like
whatever man, अगर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है तो let's just go and start enjoying the life. 7 दिन बचे हैं और उस 7 दिन में भी ये लोग कितना लाइफ एंजॉय कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते, it's the story of that. So पंचनामा that was बहुत बहुत अलग है उससे सर. यार फ्रेंड्स तो नहीं, वो तो हर फिल्म में ही रहेंगे, तो ये तो बिना फ्रेंड्स के फिल्म बनाना मुश्किल हो जाएगा. सो बट आई थिंक इट्स गोना बी बिल्कुल कुछ सेम नहीं होने वाला, इट्स गोना बी डिफरेंट. इसका जवाब आप देना चाहेंगे? सर इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जहाँ तक नहीं, लेकिन बात वो है ही नहीं. जैसे देवेंद्र ने भी बताया कि फिल्म इज अबाउट, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है फिल्म में कि ये एंड होने वाली है दुनिया. जैसे वो आप कोई और रेफरेंस लें तो उसमें एक्चुअली दे शो द वर्ल्ड एंडिंग और ये वो. पहले जब मैंने भी नाम सुना मुझे लगा कि यार कोई वर्ल्ड एंड, पर मुद्दा वो है ही नहीं. मुद्दा है कि भाई अगर दुनिया खत्म होने वाली है, आपके पास लिमिटेड वक्त है. वो 7 दिन है, 8 दिन है, 10 दिन है, 1 महीना पकड़ लो. अगर आपको कोई बता दे कि आपके पास इतना वक्त है तो आपकी प्रायोरिटी सारी बदल जाएंगी, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. आज हम 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, 20 साल आगे वाला लोन ले रहे हैं, इंश्योरेंस वो कर रहे हैं जो हमें इतना लंबा ले जाएगा. तो अब अगर आपको बता दिया जाए कि आपके पास वक्त इतना है तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप किससे मिलोगे, किससे बातें करोगे, किसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहोगे? What exactly will you do if you exactly know that this is the time that you have? So you want to enjoy yourself, you want to chill out with friends, you want to make sure that you give time to your family. What will you do is a big question mark जो इस फिल्म के द्वारा आंसर करने की कोशिश की गई है. हाँ वही मैं मतलब सोच रहा हूँ चालू कहाँ से करूँ खत्म कहाँ करूँ. ऑब्वियसली खुश हूँ और यार पता है क्या होता है, पता नहीं है, मतलब दिस इज़ हाउ आई थिंक. आई एम एन एक्टर एंड आई लाइक टू, मतलब अच्छा काम, मन का काम करना बहुत ज़रूरी है, फिर प्लेटफॉर्म कोई भी हो. एंड ऐसा नहीं कि मैंने टीवी छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फिल्म ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दोनों करूँ, मतलब कुछ आइडिया नहीं है. बस ये है कि मन का काम मिले, जहाँ भी मिले अच्छा मिले और करने में मज़ा आए, और मज़ा बहुत आया. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सबसे पहले यहाँ से चालू करना चाहिए था मुझे. Character के बारे में, as I said before, that she's just like every other girl. I think her aspirations, her dreams, like any girl, she wants to do big things. She wants to do things she loves, enjoys doing. So basically, that's the character. I'm pretty sure most of the girls will be able to relate to it, and most of the people will be able to relate to it. And it's her journey with her friends, and how she starts seeing life in a different way when she finds out the world's gonna come to an end, and her friends are always with her, basically her support throughout. So she's very pampered, and yeah, it's her journey with her friends, and yeah. It was fun, actually. It was a lot of fun. The film, yeah. It was, we were shooting, I was shooting in UP for the first time. And and the experiences were amazing, very different. And so then we shot in Goa, the places, we went to different places, and it was a lot of fun with everybody. Everyone got along really well. It's a great team, and yeah, that's it. Last 2 questions, please. Some real life inspiration. देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट है जो ऐसी की ऐसी, कोई मेरे आने से या मेरे होने से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. तो जैसी इनकी कहानी थी और जैसे लिखी हुई थी, हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज सपोज्ड टू बी द सन ऑफ अ गॉड मैन. लेकिन इंटरेस्टिंग वही है कि ये चारों दोस्त अपनी लाइफ का कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं,
उसमें उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है. ऑब्वियसली माई फादर्स ऑल्सो इन द फिल्म इज़ अ वेरी वेरी रिच मैन एंड उम्मीद की जाती है कि अपने फादर का ये जो बिजनेस अगर कह सकते हैं तो उसको बेटा आगे बढ़ाएगा, लेकिन बेटा वो करना नहीं चाह रहा है. तो उसको जो एक मौका मिलता है थ्रू द फैक्ट के दुनिया 7 दिन में ख़त्म होने वाली है, जिस बात से ये सब कन्विंस्ड हैं और होने वाली है, तो किस तरह वो इस चीज़ से बाहर निकलता है. बट या आई मीन देयर इज़ नो रेफरेंस टू एनीथिंग, it's just a coincidence about any other godman involved. Yeah. जी 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 नहीं आएंगे 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 बहुत जल्द. Any more questions? Done. Thank you so much, media, for all your questions, and thanks to the entire star cast and the director for all the answers. On behalf of Jaideep Chopra Productions, Iqbal Attarwala, Shaz Media Entertainment, Nagma Khan, me Tia Joshi signing off. Thank you so much for coming here and making this afternoon more beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I think 1 second. रोल नीचे. 2016 द एंड का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये पता हो कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और 7 दिन बचते हैं तो आप अपना वक्त कैसे गुजारेंगे. आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लास्ट 7 डेज़, लेकिन आपको भी एक सोच में डाल देता है कि अगर हमारे पास 7 दिन बचें तो हम किस तरह से लाइफ रिमेनिंग 7 डेज़ कैसे बिताएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा आगे की प्लानिंग करते रहते हैं. जैसे अभी बात हो रही थी कि हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग समर वेकेशंस प्लान करते हैं, विंटर वेकेशंस, क्रिसमस, दिवाली पे ये करेंगे, ऑल ऑफ दैट हम लोग हमेशा आगे की सोचते हैं. और सबको ये पता चल जाए कि हम सब ख़त्म होने वाले हैं तो किस तरह से दुनिया इधर उधर हो जाएगी और सब क्या करेंगे. आई थिंक सारी सड़कें उसी तरह से ट्रैफिक तो ज़रूर होगा, लेकिन सब काम पे नहीं जा रहे होंगे, सब लोग कहीं और जा रहे होंगे. बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डिसाइड कि लास्ट फ्यू डेज़ विल बी इन विच सिटी या विच स्टेट या विच हाउस. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. और ये एक ऑब्वियसली एक कॉमेडी टेक है. सीरियसली अगर इसको बनाया जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो फन. सो जो ट्रेलर देखा इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. रियल लाइफ में ऐसा हो जाए. हाँ, तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हैं? नहीं, जैसे सभी के लाइफ में तो इतनी सारी ड्रीम्स तमन्ना होती हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं, कॉलेज जाएं और फिर यू नो सो मेनी ड्रीम्स फॉर देम. और 7 डेज़ में अगर ख़त्म हो रहा है तो आई थिंक फैमिली के साथ ही बिताएंगे ज़्यादातर लोग. और जो यंग बच्चे हैं वो तो अपने दोस्तों के साथ आई थिंक. महिमा जी, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? क्योंकि लंबा समय हो गया है आपको बड़े पर्दे पर देखने. नहीं, जब होगा तो बुला लूँगी आपको. बहुत सेंसिटिव है. आई थिंक मेरी राय, सिर्फ मेरी राय लेना आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है. जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए. बिकॉज आई तो फील कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतने सारे एक्टर्स हैं तो लेट्स स्टिक विद देम. अगर ये इशू हो रहा है तो आई जस्ट फील, लेकिन जिनकी फिल्म बन चुकी है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अगर अभी आप थिएटर से हटा देते हैं. बिकॉज़ उन लोगों ने इतनी मेहनत की है और पहले ऐसा कोई स्टैंड नहीं था हमारे देश में. आई थिंक सडनली जब पिक्चर रिलीज़ हो रही है तब ये स्टैंड लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए. तो वहाँ मुझे दुख होता है. लेकिन आगे से अगर आप ऐसा रूल बनाएंगे तो आई थिंक एवरीबडी विल अडहर टू इट. लेकिन पहले रूल नहीं था और अब आप सडनली बोलें कि बिकॉज फिल्में तो बहुत पहले बन जाती हैं ना जब सभी कुछ ठीक था. बट पीपल आर सेंसिटिव. बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं, इतने यंग सोल्जर्स आप देखते हो और यू नो उनके बारे में सोचते हो कि सडनली ये घटना हो गई, वो जो ऑपरेशंस हुए, तो फिर एक तरह से जो हमारे भारतीय हैं तो उनको गुस्सा भी आता है. तो उनको लगता है हर जगह से मतलब किसी तरह से हम हर एक पाकिस्तानी के अगेंस्ट स्टैंड लिया जाए. तो दोनों तरफ से मैं सोचती हूँ. थैंक यू.
एंजॉय करने। देखिए 2016 दी एंड में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि 2016 में दुनिया ख़त्म होने वाली है। हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई बता दे कि इतना वक्त है और इतने वक्त में 2016 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, आपके पास इतने दिन बाकी हैं, तो वो आखिरी कुछ दिन आप किस तरह गुजारना चाहेंगे? ये सवाल ज़रूरी है, एक बार खाली अपने जहन में ये सवाल को लाना ज़रूरी है जिससे आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो। जैसे मेरा भी यही मानना है कि मैं हैप्पी गो लकी इंसान हूँ, अच्छी तरह मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, प्रेशर नहीं लेता, लेकिन हम जिस तरह प्लान करते रहते हैं ना 20 साल आगे, 25 साल आगे, 30 साल आगे इंश्योरेंस पॉलिसीज़, तो हम यही सोच के लेते हैं कि दुनिया कितनी आगे, मतलब 20-25 साल बाद क्या होगा, तो हम इतना आगे का क्यों सोचते हैं? इतनी ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में जिए, आज का दिन एंजॉय करने की कोशिश करें। एक फिल्म में मैंने कहीं सुना था या किसी ने कहा था कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। मैं यही मान के आप सुबह जागो और ये सोचो कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो बस ये शुरुआत है और एंजॉय करो विद एवरी पासिंग डे। कुछ अगर रियल लाइफ में कि 7 दिन में या 10 दिन में दुनिया खत्म हो जाए, कौन सा काम है जो कर लेते हैं? सर अगर सच में पता चल जाए कि दुनिया में इतने ही दिन बाकी हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मैं बहुत सोचा हूँ इसके बारे में और अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर सब ख़त्म ही होने वाला है तो मैं कोई भी चीज़ मतलब मेरा बड़ा मन था कि यार ये ले लूँ वो ले लूँ, या फिर अगर मेरे पास मतलब आपके पास पैसे की तो कोई मायने रहे नहीं ना। जो पैसा आपके पास पड़ा है, जो गाड़ी आपके पास खड़ी है, जो चीज़ें आपके पास हैं, आपके पोजेशंस तो ख़त्म हो गए, क्योंकि 10 दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपने अपनी लाइफ में बनाया क्या है? बनाए हैं अपने रिलेशनशिप्स, बनाए हैं अपने दोस्त हैं, आपकी एक फैमिली है, इनके साथ आपने एक प्यार भरा रिलेशनशिप बनाया है, उसको कायम रखें। उसको आखिरी कुछ 10 दिन में मेरे ख्याल से जिस तरह कभी कभी जहन में आता है कि यार इट्स बीन अ वाइल कि आपने इस दोस्त से बात नहीं की, महीनों गुजर जाते हैं, ऑल्दो वो आपका बहुत ही करीबी और अच्छा दोस्त है, लेकिन आपका रूटीन ऐसा है, लाइफ ऐसी है कि आपकी रोज़ बातें नहीं होती। अगर ये 10 दिन बचे हैं तो आई एम श्योर कि मेरा सबसे पहला टारगेट यही होगा कि फैमिली जिसके साथ अगर मैं कम वक्त बिता पाया हूँ तो उसको मैं मतलब ये तो 10 ही दिन है, बस बिता लो जितना बिताना है। उन दोस्तों को कांटेक्ट कर लो, उनसे बातें कर लो, उनको बता दो कि उनके मेरे जीवन में उनका कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो बस यही इन्हीं चीज़ों में आखिरी 10 दिन गुजार लेंगे। प्लीज अभी हमको वेकेट करना है भाई। सवाल पूछ लो बस लास्ट क्वेश्चन। आपको जो उनका चल रहा है, चल रही है ये वाले क्वेश्चन प्लीज नहीं। बट आपका व्यूज क्या है, मतलब क्या बैन करना चाहिए पाकिस्तान देश के बारे में? तो कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? कमेंट नहीं सर। एक सर ये छोड़िए ना, रहने दीजिए। चलिए, थैंक यू।